Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Abdul Majid Khan, your biology teacher. Unit 2, homeostasis. Last time we have discussed disorders of kidneys. What are the disorders of kidney or kidney disorders? It is the abnormalities in kidney functioning or the function of kidney. Abnormalities in the normal functioning of kidneys are known as kidney disorders. And we have discussed that there are two types of kidney disorders. One is kidney stones and the other one is kidney failure or renal failure. Now, we have discussed about the kidney stones. What are the kidney stones? These are the hard crystalline materials. We have discussed its composition, that it may composed of calcium phosphate, calcium oxalate or uric acid. And these crystalline materials stick in our urinary tract or kidney. And what are the causes of these kidney stones? How they are formed? The main cause is our diet, less intake of water, excess of vitamin C and D, excess of uric acid in our blood, alcohol consumption, urinary tract infection, and age. These are the causes, these are the factors due to which kidney stones are formed, and we have discussed each one in detail. Then we have discussed about the symptoms of kidney disorders. Symptoms include nausea, vomiting, blood and pus in urination, the foul smell of urine. These were the symptoms of kidney stones. And how they are formed? Due to metabolic diseases like hypercalcemia, hyperoxaluria, hyperuricemia. And then we have discussed the types of kidney stones. 70% of the patients have calcium oxalate stones, 15% of the kidney stones patient have calcium phosphate stones, and 5 to 10% of kidney patients have urate or uric acid stones. These are the three types of kidney stones. Then we talked about the treatment of kidney stones, kidney stone disorder, that it may be removed. These stones are removed by surgery if they are larger in size, and if they are smaller in size, the patients advised to drink more water, that it may drain with water. And then we have discussed in detail about lithotripsy with the extracorporeal shock waves treatment, through which kidney stones are broken into sand-like materials and then it is removed from the body. And today we will discuss about renal failure or kidney failure, the other type of kidney disorder. The second type of kidney disorder is renal failure or kidney failure. What is the renal failure or kidney failure? Due to pathological and chemical factors in our body, nephrons progressively destroyed and stop functioning, particularly the main part of nephron, that is glomerulus, that is involved in filtration. What is the function of nephron? Filtration. And where does filtration occurs? In glomerulus. So if the whole nephron, or particularly mainly the glomerulus, destroyed, what will happen?
the functioning of nephron or the functioning of kidney will be stopped. यानी कि रीनल फेलियर या किडनी फेलियर क्या होता है? ये पैथोलॉजिकल या केमिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं, द स्टडी ऑफ डिजीज़ेज़ इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी, and these factors, these diseases are collectively known as pathological factors. And similarly chemical factors, जिस तरह हम कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन्स या मेडिसिन्स का ओवरडोज लेते हैं तो ये एक केमिकल फैक्टर है। इन दो फैक्टर्स की वजह से, पैथोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स की वजह से, नेफ्रॉन्स या इसका मेन फंक्शनिंग पार्ट ग्लोमेरुलस डिस्ट्रॉय हो जाता है। और प्रोग्रेसिवली का क्या मतलब है कि किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। अब ये सारे के सारे नंबर वाइज डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं इन डिजीज़ की वजह से, इन केमिकल फैक्टर्स की वजह से। तो किडनी का फंक्शन क्या हो जाएगा? यूरिन फॉर्मेशन या ब्लड फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रीनल फेलियर या किडनी फेलियर कहते हैं। गुर्दों का फेल हो जाना। रीनल टर्म इज़ यूज्ड फॉर किडनी, सो रीनल फेलियर मीन्स किडनी फेलियर्स। अब इसके काजेज़ हमने बात की कि ड्यू टू पैथोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, तो कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, कौन से केमिकल फैक्टर्स। तो पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में यहाँ पे हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस है। अगर किसी बंदे को कॉन्टीन्यूसली शुगर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो ये काज कर सकता है किडनी फेलियर। अब ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, किडनी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकेगी। एंड द सेकंड पैथोलॉजिकल फैक्टर इज़ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो आपको पता है ग्लोमेरुलस से ब्लड पास होगा तो उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी। उसको एक नॉर्मल प्रेशर चाहिए होता है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होती है मटेरियल्स की। ब्लड से वेस्ट मटेरियल्स फ़िल्टर होता है, दूसरे मटेरियल्स फ़िल्टर होते हैं। तो नॉर्मल प्रेशर जब नहीं होगा, ये प्रेशर जब हाई हो जाएगा तो क्या होगा? फंक्शनिंग डिसरप्ट होगी या स्टॉप हो जाएगी। फिर अगर किडनी के अंदर कोई सीवियर इन्फेक्शन है, किडनी के अंदर किसी भी वजह से कोई इन्फेक्शन काज हो गया है, कोई ज़ख़म काज हो गया है, तो इस किडनी का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और फिर केमिकल फैक्टर्स में मेडिसिन्स ओवरडोज या एक्सपायर्ड मेडिसिन्स का यूज़, कुछ ख़ास किस्म के मेडिसिन्स हैं, ऐसे मेडिसिन्स जिनमें स्टेरॉइड्स, प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, ये जब हम नॉर्मल से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो इनकी वजह से भी ग्लोमेरुलर फंक्शन स्टॉप हो जाता है। अब अगर नेफ्रॉन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, इसका फंक्शन स्टॉप हो जाएगा इन केमिकल और पैथोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, तो क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन होगी, यानी कि ब्लड फिल्टर नहीं होगा ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस डैमेज हो चुका है या डैमेज नहीं भी हुआ तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। तो अब इस ब्लड के अंदर जो यूरिया और दूसरे वेस्ट हैं, इनका लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। इन वेस्ट मटेरियल्स के इंक्रीमेंट की वजह से ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस काज होंगी, डिजीज़ काज होंगी, लाइक ब्लड प्रेशर, एनीमिया। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से डेथ काज हो सकती है। एनीमिया क्या है? जैसा कि आपको पता है, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन्स होते हैं, तो हीमोग्लोबिन्स की अमाउंट में कमी हो जाएगी और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं?
एनीमिया कहते हैं। तो ये हमने क्या देखा, रीनल फेलियर देखा कि क्या होता है और उसकी काजेज़ देखी कि क्यों होता है, और फिर रिज़ल्ट देखा कि क्या होगा अगर रीनल फेलियर हो जाएगा। तो दूसरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होगी और इट कैन लीड टू डेथ। अब कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। अब जिसको रीनल फेलियर होगा उसका वेट एकदम लॉस हो जाएगा। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल्स इंक्रीज़ हो गए हैं, तो ऑक्सीजन और फूड मटेरियल सेल्स को आसानी से नहीं पहुंच सकेगा, तो इससे एनर्जी प्रोडक्शन ही होगी और भी फंक्शनिंग बॉडी की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट होगी, इससे वेट लॉस होगा। फिर नोज़िया, जो वॉमिटिंग से पहले जो फीलिंग्स होती हैं, मतली जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो अनकम्फर्टेबल फीलिंग बिफोर वॉमिटिंग इज़ आर कॉल्ड नोज़िया। फिर वॉमिटिंग है सिम्टम इसका, फिर यूरिन में ब्लड का आना, और फिर बॉडी पार्ट्स का स्वेल हो जाना जैसे लेग्स, फीट, फेस, क्योंकि वेस्ट मटेरियल्स ज़्यादा हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं बॉडी में, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बॉडी ज़्यादा रखेगी, और जिससे फ्लूइड लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये भी रीनल फेलियर का एक सिम्टम है, एक साइन है। फिर रीनल फेलियर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर, दूसरा होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर। जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनमें कुछ एक्यूट होती हैं, कुछ क्रॉनिक। ऐसी डिजीज़ जो कि सडन लॉस काज करें किसी भी बॉडी पार्ट का, या सडन डेथ काज करें, उसको हम एक्यूट कंडीशन या एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। और क्रॉनिक जो ग्रेजुअली, जिस तरह कैंसर है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते बढ़ते फिर आखिरी स्टेज तक पहुंचता है, तो तब हमें फिर नुकसान पहुंचाता है, तब हमारी डेथ का। तो ऐसी डिजीज़ क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं। तो एक्यूट रीनल फेलियर, जब किडनी का जो फंक्शन है वो अचानक से लॉस हो जाए, किसी डैमेज की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से अचानक से जब किडनी फंक्शन स्टॉप हो जाए, लॉस हो जाए, इसको हम एक्यूट रीनल फेलियर कहेंगे। और अगर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हमारी किडनी का फंक्शन पहले 10% कम हुआ, फिर 20%, और करते करते आहिस्ता आहिस्ता कम होते गया, तो ये ग्रेजुअल लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ किडनी है, इसको हम क्रोनिक रीनल फेलियर कहेंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। रीनल फेलियर की ट्रीटमेंट दो तरीक़ों से हो सकती है, एक डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। यानी कि अब किडनी तो फेल हो चुका है, वो अपनी फंक्शनिंग नहीं करेगा, आप आर्टिफिशियल किडनी के ज़रिए ब्लड से वेस्ट मटेरियल को क्लीन करवाओगे, या फिर एक नई हेल्दी किडनी उसको रिमूव करके, फेल्ड किडनी को रिमूव करके एक नई किडनी बॉडी में डाल दोगे। तो ये दो मेथड्स हैं रीनल फेलियर को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो पहला मेथड हम देखते हैं डायलिसिस। अब डायलिसिस ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सेपरेशन, वेस्ट मटेरियल को ब्लड से सेपरेट करना। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्लड क्लीनिंग इज़ कॉल्ड डायलिसिस, यानी कि वेस्ट मटेरियल्स आर आर्टिफिशियली सेपरेटेड। अब वो हम आगे देखते हैं कि कैसे आर्टिफिशियली सेपरेट किए जाते हैं वेस्ट मटेरियल को ब्लड से। तो सिंपल डेफिनेशन डायलिसिस की क्या होगी, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लीनिंग ब्लड या आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्लड क्लीनिंग is known as dialysis. अब why this artificial blood cleaning is needed due to renal failure? क्योंकि जो किडनीज़ हैं
वो फेल हो चुकी हैं, वो नॉर्मल फंक्शनिंग अब परफॉर्म नहीं कर सकती। दे हैव लॉस्ट देयर फंक्शनिंग कम्प्लीटली। नाउ nitrogenous waste cannot be removed from the blood, so the blood of patients is treated through dialysis. So blood of the patient is treated artificially. So nitrogenous waste from the blood of patients is removed artificially. How they are removed? By a dialyzer, by artificial kidney known as dialyzer. It is a machine, kidney machine or artificial kidney. So dialyzer एक किडनी मशीन है, एक आर्टिफिशियल किडनी है। इट हैज़ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स। इसके अंदर ट्यूब्स होते हैं, पाइप्स होते हैं जो कि सेमी परमिएबल होते हैं, जिन ट्यूब्स की मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब मैकेनिज़्म क्या है इसकी वर्किंग का, इसको हम देख लेते हैं। मैकेनिज़्म ये है कि ब्लड एंड डायलिसिस फ्लूइड केप्ट ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन। अब हमने बात की ना कि ट्यूब्स होते हैं और ट्यूब्स के बाहर जो स्पेस होती है, अब ट्यूब के अंदर वाली स्पेस को हम स्पेस 1 कह देते हैं और ट्यूब्स के बाहर वाली स्पेस को हम स्पेस 2 कह देते हैं। और ट्यूब्स की चूँकि सेमी परमिएबल हैं, अब ट्यूब्स के अंदर ब्लड को गुजारा जाता है और बाहर वाली स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है, ख़ास किस्म का फ्लूइड होता है, इसको हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। तो यानी कि ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है उसके ऑपोजिट साइड्स पे ब्लड होगा, एक साइड पे ब्लड होगा और दूसरी साइड पे डायलिसिस फ्लूइड होगा। अब इससे क्या होगा, इससे नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में कंसंट्रेशन चूँकि ज़्यादा है उसकी और फ्लूइड में कम है, एंटर हो जाएगा फ्लूइड में और ब्लड इस तरह प्यूरिफाई हो जाएगा। तो ये प्यूरिफाइड ब्लड बॉडी में दोबारा भेज दिया जाता है। अब डायलाइज़र हेल्दी किडनी की तरह वर्क कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर कर रहा है। तो ब्लड से वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर रहा है, यानी कि क्लीन कर रहा है ब्लड को, और आर्टिफिशियली ये काम एक मशीन के थ्रू हो रहा है। इस मशीन को हम डायलाइज़र कहते हैं। तो हमने देखा डायलिसिस में वर्किंग कैसे होती है, इसका मेथड, प्रोसीजर या मैकेनिज़्म हमने देखा। अब ये जो डायलिसिस है, आर्टिफिशियल ब्लड क्लीनिंग या सेपरेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड, इसकी दो टाइप्स हैं। एक है हीमोडायलिसिस, दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसको हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। आपको जो फंक्शनिंग ऑफ डायलाइज़र है वो भी डिटेल में इसी टॉपिक में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले डायलिसिस की फर्स्ट टाइप हीमोडायलिसिस। हीम का मतलब होता है ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है ना रेड ब्लड सेल्स में, तो उसी से हीम का मतलब होता है ब्लड। डायलिसिस का मतलब होता है आर्टिफिशियल क्लीनिंग। सो क्लीनिंग ऑफ ब्लड, हीमोडायलिसिस मीन्स, हीम मीन्स ब्लड एंड डायलिसिस मीन्स क्लीनिंग। सो क्लीनिंग ऑफ ब्लड या ब्लड क्लीनिंग हीमोडायलिसिस का मतलब हुआ। इस मेथड में डायलाइज़र मशीन, आर्टिफिशियल किडनी या किडनी मशीन यूज़ की जाती है फॉर क्लीनिंग ब्लड को क्लीन करने के लिए। अब ये जो डायलिसिस होती है हीमोडायलिसिस, ये आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म की जाती है डायलाइज़र मशीन में। इट इज़ परफॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी इन अ डायलाइज़र मशीन। जबकि जो दूसरी पेरिटोनियल डायलिसिस है वो हमारी बॉडी के अंदर ही परफॉर्म की जाती है, उसमें डायलाइज़र मशीन जो होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती।
अब इसका प्रोसीजर क्या है, 2 स्टेप्स हैं इसके अंदर। हीमोडायलिसिस का जो प्रोसीजर है, जो मैकेनिज़्म है, 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में नीडल इंसर्शन, 2 नीडल्स आर्म्स में इंसर्ट की जाती हैं थ्रू आर्टेरियोवेनस साइट। एक साइट जनरेट की जाती है। इस साइट में क्या किया जाता है कि एक मेन आर्टरी जो आर्म के अंदर होती है, एक नीडल उसमें लगा दी जाती है और दूसरी नीडल वेन में लगा दी जाती है। तो ये घर में नहीं परफॉर्म किया जा सकता, ये स्पेशल सेंटर्स होते हैं, डायलिसिस सेंटर्स, वहाँ पे स्टाफ होता है, उनको पता होता है, तो वो टेक्निकल स्टाफ ये डायलिसिस परफॉर्म करते हैं। अब ये जो नीडल्स होती हैं, एक आर्टरी में दूसरी वेन में इंसर्ट कर दी। इस नीडल के साथ पीछे क्या कनेक्ट होता है, प्लास्टिक ट्यूब्स। जिस तरह हम ड्रिप लगाते हैं ना, ड्रिप की जो नीडल होती है उसके पीछे बहुत लंबी सी ऐसे प्लास्टिक ट्यूब होती है। ये ट्यूब आके डायलाइज़र मशीन के साथ कनेक्ट होती है। अब डायलाइज़र मशीन में क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हो गया, कनेक्शन होगी। दूसरे स्टेप में अब ब्लड पास होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड डायलाइज़र मशीन में आ जाएगा तो वहाँ पे डायलाइज़र मशीन में हमने बात की थी कि सिस्टम ऑफ ट्यूब्स हैं, वहाँ पे ट्यूब्स मौजूद हैं। इन ट्यूब से ब्लड पास होगा और ये जो ट्यूब्स हैं हमें पता है कि क्या हैं, सेमी परमिएबल हैं। अब ब्लड इन ट्यूब्स के अंदर जब फ्लो करेगा और ट्यूब्स के बाहर फ्लूइड प्लेस किया होगा, अब नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से फ्लूइड में एंटर हो जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव मटेरियल, इस मेम्ब्रेन की जो पोर्स होती हैं वो सिलेक्टिव होती हैं, उसमें से ब्लड सेल्स या प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन्स पास नहीं होती। अब ये जो ट्यूब्स हैं या ये जो ट्यूब्स की मेम्ब्रेन है, ये ग्लोमेरुलस का काम कर रही हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट इससे डायलिसिस फ्लूइड में एंटर हो जाएगा और इस तरह ब्लड प्यूरिफाई होके जो दूसरी ट्यूब है उससे बॉडी में रिटर्न हो जाएगा, वेन में चला जाएगा। अब डायलिसिस ये जो प्रोसेस है इसमें 6 से 10 घंटे लगते हैं और वीक में 2 से 3 दफ़ा ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेथड है, ये जो ट्रीटमेंट है, ये परमानेंट नहीं है और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है। और यानी कि वीक में 2 से 3 दफ़ा 6-6 घंटे सिर्फ आप ब्लड को क्लीन करवाते रहें तो कितना मुश्किल है। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे किडनी ट्रांसप्लांट जो परमानेंट मेथड है उसको भी हम देखेंगे। तो हीमोडायलिसिस समझने के लिए ये रफ सा मैंने एक स्केच बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आर्म है और आर्म में आपकी आ रही है जी, ये आर्टरी आ रही है। आर्टरी से ब्लड, आर्टरी में नीडल हमने एंटर की, नीडल के साथ ट्यूब कनेक्टेड है, ट्यूब से यहाँ ब्लड आया डायलाइज़र मशीन में, आर्टिफिशियल किडनी में, और इसमें ये सिस्टम ऑफ ट्यूब्स हैं। ये ट्यूब्स बहुत सारी आपस में कनेक्टेड हैं, एक सिस्टम बना है। अब ब्लड इस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स में मूव करेगा, सर्कुलेट करेगा जिस तरह ग्लोमेरुलस में करता है, और ये ट्यूब से पास हो जाएगा जी बॉडी में, वेन के थ्रू एंटर हो जाएगा। तो एक ट्यूब आर्टरी के साथ कनेक्टेड है और दूसरी वेन के साथ कनेक्टेड है। अब इन ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन होती है, जो इनकी वॉल होती है, ये सेमी परमिएबल होती है और यहाँ से ख़ास फ्लूइड पंप किया जाता है। तो ये जो स्पेसेस हैं ट्यूब्स के बाहर, स्पेस 2 हम इसको कह लेते हैं, इन स्पेसेस के अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट है, डायलिसिस फ्लूइड। अब इस फ्लूइड के अंदर यहाँ से मेम्ब्रेन से नाइट्रोजनस वेस्ट और दूसरी चीज़ें एंटर होगी और ये फ्लूइड
इसका आउटलेट यहाँ से इस तरह यहाँ पे जो यूज्ड फ्लूइड है वो यहाँ पे स्टोर होता रहेगा। अब यूज्ड फ्लूइड यहाँ से क्यों निकाला जाता है, उसकी वजह ये है कि जो कंसंट्रेशन है फ्लूइड में और ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट की या दूसरे वेस्ट की, वो होम्योस्टैटिक ना हो जाए, वो सेम ना हो जाए, फिर तो आपको पता है ब्लड से फिर डिफ्यूजन नहीं होगी। तो जो यूज्ड फ्लूइड है, डायलिसिस फ्लूइड, उसको रिमूव किया जाता है इस आउटलेट से और यहाँ स्टोरेज में वो जाता रहता है। तो इस तरह फ्रेश जो फ्लूइड होता है डायलिसिस फ्लूइड, उसको पंप किया जाता है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने रीनल फेलियर पढ़ा। अब रेनल फेलियर में हमने बात की कि ये पैथोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स की वजह से होता है और इसमें नेफ्रॉन्स और उस ख़ासकर उसका जो पार्ट है, मेन पार्ट ग्लोमेरुलस, ये कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। काजेज़ फिर हमने देखे, ठीक है। तो डिफरेंट डिजीज़, पैथोलॉजिकल काजेज़ देखे, फिर केमिकल काजेज़ भी हमने देखे और कुछ सिम्टम्स हमने रीनल फेलियर के देखे कि वेट लॉस, नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्लड इन यूरिन और स्वेलिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। टाइप्स ऑफ रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर, इसकी हमने बात की। और फिर इसके बाद हमने देखा ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर। तो इसमें डायलिसिस एक ट्रीटमेंट है और किडनी ट्रांसप्लांट इसकी एक ट्रीटमेंट है। अब डायलिसिस में क्या होता है, आपकी बुक में डायलिसिस को डिस्कस किया गया। डायलिसिस जो कि आर्टिफिशियल क्लीनिंग है ब्लड की, जो कि आर्टिफिशियल किडनी या किडनी मशीन जिसको हम डायलाइज़र कहते हैं, इसके थ्रू की जाती है और इसके दो टाइप्स हैं डायलिसिस के, ठीक है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट पे भी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। और आज हमने क्या देखा, हीमोडायलिसिस के बारे में देखा कि डायलाइज़र मशीन से ब्लड को पास किया जाता है और उस ब्लड से डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स फ़िल्टर आउट होते हैं। कैसे होते हैं, ड्यू टू द परमिएबल, सेमी परमिएबल वॉल ऑफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स ऑफ दैट मशीन। और फिर हमने बात की कि 6 से 10 घंटे तक ये किया जाता है और वीक में 2 से 3 टाइम करवाना पड़ता है हीमोडायलिसिस। तो आपकी जो आज की होम असाइनमेंट है वो है व्हाट इज़ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर को आप एक्सप्लेन करेंगे और इसकी जो ट्रीटमेंट है डायलिसिस, फिर उसमें ख़ास टाइप ऑफ डायलिसिस दैट इज़ हीमोडायलिसिस, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो होपफुली आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।